Now we'll start with our next panel, fourth panel, that is Born for Business, Experiences of PWD Entrepreneurs Going Global. Current era is of startups and entrepreneurs. In recognition to this, government has also announced Startup India initiative in 2015-16. People in general are moving beyond the regular course of getting a decent job in either a government or private sector. They are up for risk and rewards. They are up for walking unguided trails or explore on their own. And they look forward to contribute their share to sustainable economic growth and employment to others. And people with disability are no different. And maybe better at a few prospects. We'll get to know such stories on regular basis. So as soon as you start online searching nowadays and you type PWD entrepreneurs, it will blow up your mind. You'll get to see many real life examples. Let it be accessible travel company run by a PWD champion. Let it be accessible rental transport considering the commuting requirements of Divyangjan, supporting parents of PWDs or the general human requirements. In this panel, we'll witness all such stories of many such entrepreneurs, their experiences of not being just self-sufficient, but being a job creator, and their tips for budding entrepreneurs. So with this, I request our moderator of the session, Atul Bhatnagar sir, our National Advisory Board member, to please join us on the dais. Atul sir is the former COO of NSDC. He left in November 2015 and found his inner calling in becoming an advisor to startups and social impact organizations in the field of skill development, education, and renewable energy. He is currently associated with Pan IIT Alumni Foundation, Parfi, Sun Moksha, Sarthak, IIMC Innovation Park. Welcome, sir. Next, I'd request Rahul Gupta, sir, to please join us on the dais. He's also our advisory board member and accomplished banker with over 16.5 years of rich experience across customer segments in India and the UK. I'd request Dr. Neeru Kumar to please join us. Dr. Neeru Kumar offers her expertise in diversity, strategy, policies, talent management, and many other areas. We are glad to have you, ma'am, here. Neeru Kumar, ma'am. Ms. Abha Khedarpal is joining us virtually. She is a National Award winner, felicitated by the President of India and one of the 100 Women Achievers in India. Dr. Jatinder Singh, Assistant Secretary General, PhD Chamber of Commerce and Industry. Ms. Richa Sahani, Head of PR, Atypical Advantage. And Dr. Bhushan Punani, our Advisory Board Member and General Secretary, Blind People's Association. Dr. Punani is also joining us virtually. With this, I request Atul sir to please take it ahead. Good afternoon to you all, and all the people who are looking at us or listening to our session from YouTube and Facebook. And on behalf of Sarthak, I welcome all my panelists here. My name is Atul Bhatnagar, and आज का जो सेशन है वो है उद्यमिता के ऊपर। और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल बहुत ज़्यादा ये शब्द यूज़ हो रहा है। और मैं एक चीज़ इसके बारे में बताना चाहता था कि भाई उद्यमिता और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है। बिजनेसमैन का आपने नाम बहुत सुना होगा, बिजनेस करते हैं, बहुत लोग करते हैं बिजनेस, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर जो शब्द है ये अभी कुछ हाल ही में आया है, मतलब कानों में पहली बार सुनाई दिया है तो बहुत दिनों से, सालों से है, मतलब ऐसा नहीं है। तो उद्यमिता में क्या चीज़ ऐसी है जो बिजनेस से डिफरेंट है। बिजनेस तो वो हुआ कि जहाँ पे मतलब पहले से एक कोई आइडिया आया हुआ है, सालों से उस पर काम चल रहा है। समझ लीजिए जैसे साड़ियों की बात है,
तो कोई साड़ी वहाँ से कोयम्बतूर की साड़ी बनारस में बिक रही है, बनारस की साड़ी कोयम्बतूर में बिक रही है, उड़िया साड़ी राजस्थान में आ रही है। तो कोई साड़ियों का जैसे वो बिज़नेस करते हैं। तो ये आज की बात नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है। कई लोगों के तो मतलब पूरी फैमिली इसका बिजनेस हो जाता है। उद्यमिता वो है कि जो चीज़ पहले कभी हुई नहीं थी उसका कोई एक आइडिया लेके किसी ने एक बिजनेस शुरू किया। तो जैसे कि सपोज़ अगर आप चाहें कि भाई कोयम्बतूर की साड़ी अगर हमें बनारस में बनानी है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आप मतलब वहीं पे बैठ के आपके सामने आपकी साड़ी बन रही है किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वो चीज़ कभी पहले नहीं हुई तो पहली बार हो गई। तो ये चीज़ एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है। उससे फिर वो जैसे कि कभी पहले वो कोई रास्ते पे कोई था नहीं, आज कोई जंगल में एक नया रास्ता निकाल रहा है, वही उद्यमी है, वही एंटरप्रेन्योर है। तो उसी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कहते हैं ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या आप कौन सी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, और वो समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए कि ताकि वो और लोगों के भी काम आए, उससे आपका मुनाफा भी बने और आपका बिजनेस और बढ़े। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी वो उद्यमिता बढ़ रही है, उससे आप लोगों को और जॉब्स दे सकते हैं। तो आप जॉब क्रिएटर हो गए, मतलब आप जॉब देने वाले हो गए, ना कि जॉब ढूंढने वाले। जॉब सीकर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं कि भाई हमको कहीं नौकरी मिल जाए, और जॉब क्रिएटर्स जो खुद ही जॉब बना रहे हैं और लोगों को देने के लिए। तो हमारा यही आज का विषय रहेगा। और जो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं पैनल में और जो ऑनलाइन हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में एक तरह का ऐसा उद्यमी काम किया है जिससे औरों को जॉब मिल सके, या कुछ ऐसा कंसल्टिंग की है जिससे वो बढ़ सके। अब जैसे ये उद्यमिता का यही मतलब नहीं हुआ कि भाई हर एक जगह आपने कुछ पैसे लिए लगाए और कोई इन्वेस्टर मिला और उससे आगे काम किया। एक तरह की समर्थन प्रणाली पूरी बनानी पड़ती है कि जिसमें लोग मेंटर करने के लिए भी हैं, कुछ इन्वेस्टर के लिए भी हैं, कुछ मार्केट लिंकेज के लिए हैं, आपकी चीज़ कैसे बिकेगी। आप ये भी देखिए अमेज़ॉन वाले लोग यहाँ पे थे, तो अमेज़ॉन वालों ने कितनी अब करोड़ों उनके पास प्रोडक्ट्स हैं जो बिक रहे हैं। तो कैसे कैसे बढ़ता है, यही उद्यमिता हमारे के लिए आज की जैसे फोकस रहेगा। तो मैं अपने जो फेलो पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा और उनका इंट्रोडक्शन उसी समय करूंगा, और आप लोगों का मैं समर्थन चाहता हूं कि आप लोग सुने, और आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आए उनको आप चाहे वो फेसबुक और यूट्यूब में पोस्ट करें, वो हमारे तक पहुंच जाएगा, या यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इस हॉल के अंदर वो लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे पहले स्पीकर हैं राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता मेरे साथ में यहाँ बैठे हैं, और ये एक बड़े अकम्पलिश्ड बैंकर हैं। 16 साल का इनका वर्क एक्सपीरियंस है, और ये डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स में काम कर चुके हैं, इंडिया ही नहीं यूके में भी, ब्रिटेन में थे ये, और इन्होंने अपनी योग्यता से वहाँ काम किया, ना कि ये दिव्यांगजन हैं तो इनको आंखों से कोई प्रॉब्लम है, इसका कोई कहीं पे भी कोई वर्णन नहीं है। इन्होंने अपनी योग्यता से जो हासिल किया, और अब ये अपने एक उद्यमी जर्नी पे शुरू कर गया है, इन्होंने शुरुआत की है। और ESG, तो ESG का क्या मतलब है? ESG का मतलब है कि भाई E फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण जैसे, S फॉर सामाजिक जैसे सोशल, और G इज़ फॉर गवर्नेंस, मतलब शासन। तो ये जो सोशल का जो काम है उसमें ये निवेश ढूंढते हैं, इन्वेस्टमेंट कराते हैं, और इन्होंने यहाँ के पढ़े हुए हैं सेंट स्टीफन कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, और मैं ये जानता हूँ कि ये शायद प्राइवेट सेक्टर जॉब में वन ऑफ द हाईएस्ट रिजन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं। तो मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। तो आज ये मैं इनसे चाहूँगा कि भाई आप अपने नए अवतार में राहुल ये बताइए कि भाई आप जो एक सोशल चेंज लाना चाहते हैं विच इज़ सस्टेनेबल, हाउ डू यू इंटेंड डूइंग दैट। और आपके जो ये क्योंकि बैंकर रहे हैं तो इनको सब मालूम है कि भाई पैसे कैसे उठाते हैं, कैसे उनको निवेश करते हैं, कैसे उस पर रिटर्न लेते हैं, और कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं, तभी तो उन्होंने अब ये अपना काम शुरू किया है। तो आप ज़रा बताएं कि हमारे सभी साथियों को कि ये कैसे हो रहा है।
First of all, congratulations to Sarthak for the 9th National Conference for Disability, Dr. Jitendra Agarwal and the entire team of Sarthak. So Atul sir, I don't know about you, but yes, clearly I'm a big fan of you, the way you have built the ecosystem. Atul sir ने बड़ा एक interesting explanation दिया entrepreneurship and business का. Let me, on a very lighter note, जब आदमी बेरोजगार होता है ना तो भी वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है. दैट्स द बेस्ट वे कि भाई आज टुडे इज़ माई 23rd डे दैट आई एम आउट ऑफ द माई बैंकिंग जॉब एंड आई थिंक इफ एनीबडी आस्क मी कि यार क्या कर रहे हो बिकॉज सैलरी तो बंद हो गई. सो आई वेरी सिंपली टेल देम यार सपने देख रहा हूँ. दैट्स द बेस्ट एंटरप्रेन्योरल जर्नी आई वन. बट दैट्स ऑन अ लाइटर नोट. एज अतुल सर सेड 16.5 साल का बैंकिंग करियर, to economics degree from St. Stephen's College and Delhi School of Economics, one of the fastest growing PWD within the corporate ladder. मैंने इंडिया में काम किया, यूके में काम किया, डिफरेंट सेगमेंट्स में काम किया, इन प्रायोरिटी सेक्टर, delivered some marquee projects in India. But when and I have global aspiration, मतलब मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था, मन में बड़ा क्लियर था कि ग्लोबल नक्शे पे कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है. नाउ नेचुरली व्हाट डू वी डू? कंफर्ट जोन है, एक नौकरी कर रहे हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी के लिए बात करी, 4 लोगों से बात करी, एंड टू माई सरप्राइज जो सवाल 16.5 साल पहले पूछा गया था वही सवाल फिर से आ गया. अरे आपको तो विजन की प्रॉब्लम है, आइज की प्रॉब्लम है. एंड आई एम लाइक वाओ, मतलब 16.5 साल पहले जो जिसने सवाल पूछा था समझ आता था, कुछ काम नहीं किया था. 16.5 साल में 6 नए बिजनेस खड़े कर दिए, इतना रेवेन्यू खड़ा कर दिया. इन माई लास्ट रोल फ्रॉम 0 to 9% मार्केट शेयर इन 3 years. एंड इट वॉज नॉट बिकॉज आई वॉज दिव्यांग, बट आई वॉज डिलीवरिंग टू द PNL ऑफ द बैंक. बट इससे एक बड़ी क्लियर रिफ्लेक्शन आई दैट देयर नीड्स टू बी समथिंग नीड्स टू बी डन. मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी मैं पहले पैनल्स की सुन रहा था, एंड कंग्रेचुलेशंस टू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स हु आर वर्किंग देयर. बट एक सवाल जो मैंने कई बार इस मंच से पूछा है, मैं आज भी पूछता हूँ, एंड आई वांट एवरीबडी टू रिफ्लेक्ट. डॉक्टर अग्रवाल, सार्थक, सेवरल अदर NGOs हैव डन अ फिनोमिनल जॉब टू ब्रिंग सेंसिटाइजेशन अराउंड दिव्यांग, कि दिव्यांग एक रेलेवेंट मास है, इसमें काम करना ज़रूरी है. और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी समझ आने लगा, एज वी हर्ड फ्रॉम रिलायंस, बिग बास्केट, अदर्स. प्रोडक्टिविटी ऑफ अ दिव्यांग इज़ मच हायर. People are sticky in their jobs, people are around. But what next? The question is, senior leadership पे कितने लोग हैं? आज भी नहीं है. एक तरफ जहाँ गर्व की बात थी मेरे लिए कि I rose up to the corporate ranks, it was a problem. मेरे अलावा और कोई क्यों नहीं था? Long story short, given मैंने 16.5 साल बैंकिंग में काम किया, I realized global capital, which is endowments, pension and sovereigns, सबको चाहिए ESG. ESG is environment, social and governance. सबको डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात करनी है. सब कहते हैं हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे. कई कंपनी से जब मैं पूछता हूँ कि आपके लिए ESG का क्या मतलब है, वो कहते हैं हमारे पास ये पॉलिसी है. मेरा अगला सवाल होता है, आपने कभी पढ़ी है ये पॉलिसी? आपको पता है चीफ लाइसेंसिंग ऑफिसर क्या होता है? नहीं, बट हमारे पास पॉलिसी है. लाइक वेरी गुड. हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू यू हैव हु आर PWDs? एंड आई एम सरप्राइज पीपल रिमेन स्टन. सो मेरा एक बड़ा दृढ़ विश्वास है, ग्लोबल पूल ऑफ कैपिटल, जिस तरीके से आज हम क्लाइमेट को लेकर सेंसिटाइज हुए हैं, DE&I और सोशल को लेके द वर्ल्ड हैज़ टू गेट सेंसिटाइज्ड. चैम्पियंस विल बी दोज हु विल स्टैंड आउटसाइड द कर्व. सो एक छोटा सा मिशन, एक छोटे से विजन के साथ हम निकले हैं, जहाँ पे वेयर वी वांट टू आइडेंटिफाई चैम्पियंस इन द ESG स्पेस. वी वांट टू अट्रैक्ट ग्लोबल पूल ऑफ कैपिटल. ऑफ कोर्स एज आई सेड, आज सिर्फ 23 दिन हुए हैं मेरे को लोगों से बात करते समझते, बहुत सीखना है. मैंने अपनी माई वाइफ हु इज़ माई बिगेस्ट पिलर ऑफ सपोर्ट, मैं उसको ये कह के निकला था कि 12 महीने का रनवे है. ये सोच लो 12 महीने के MBA पे निकला हूँ, 12 महीने में ख़त्म कर लूँ, 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने, इट ऑल डिपेंड्स. बट कैन आई टैप इन टू पूल्स ऑफ कैपिटल एज वी हर्ड from our honorable guest from Niti Aayog? We want to invest into assistive technology. We want to identify champions in the inclusive tech. उन champions को ढूंढेंगे, उन champions में invest करेंगे, who will have business case, and eventually with these we will create champions and the world will automatically follow. So
So again, idea is, can we invest into more entrepreneurs who will change the life of every DE&I aspirant, PWD community, and we leave a special mark. Charity is good, but sustainability comes when you create capital. And I think that's where I am from. Thank you. Sorry, long answer, but it's a subject which is now very, very close to my heart. And one important thing, I must announce from here, whatever we do, and to make Sarthak equally sustainable and self-reliant, हम जो काम करेंगे उसका एक fixed percentage will be committed towards Sarthak, so that as an NGO we also become more self-reliant. Potentially at one point we don't have to look for donors, and we are building the community here. Thank you. कितनी बढ़िया बात की इन्होंने कि अभी बिज़नेस वैसे ये देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अपना सेटअप कर रहे हैं, इन्होंने पहले से ही कमिटमेंट कर दिया है। तो वो कमिटमेंट जो है ना, एक तरह से इनको एक दुआएं मिलेंगी इनके बिज़नेस के लिए। और बहुत बड़ी बात की कि 5% इन्होंने शुरू से ही आउटलाइन कर दिया है, ताकि हम इसको, और इसी को कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कैसे आप आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच राहुल। अच्छा, मैं नेक्स्ट आता हूँ डॉक्टर जतेंद्र सिंह से। जतेंद्र सिंह यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, और उनकी विशेषज्ञता एजुकेशन, न्यू एज बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री 4.0, IT इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने PhD किया है मैनेजमेंट में 25 साल पहले, और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, एकेडमिया, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग, पॉलिसी एडवोकेसी, बहुत सारी चीज़ें की हैं। मैं तो इतना सारा पढ़ूंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा। इनकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, और उसी पे मेरा इनका सवाल है। ये फर्मली बिलीव करते हैं कि डाइवर्सिटी ब्रीड्स इनोवेशन। ये मुझे बहुत क्यूरियस टू नो, इसको बढ़ाएं आप कैसे, इसको आप बता सकेंगे तो आप हमें थोड़ा केस स्टडीज और इंस्टेंसेस बताइए, ताकि आप ये बिलीव कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी ब्रीड्स इनोवेशन। थैंक यू वेरी मच अतुल जी। इनफैक्ट सबसे पहले सार्थक को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो इनफैक्ट सार्थक के साथ बहुत सालों से जुड़ा हूं, और हर साल जब मैं प्रोग्राम अटेंड करता हूं तो मुझे एक स्केल नेक्स्ट लेवल पे लगता है हर बार सार्थक का। तो सार्थक अपने आप में एक वेल एस्टेब्लिश स्टार्टअप है, और स्टार्टअप से इट हैज़ बिकम अ लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विंग PWD. So congratulations to Dr. Jitendra Agarwal and the entire Sarthak team and entire fraternity who is directly or indirectly associated with Sarthak and similarly related NGOs. अब अतुल जी आपने बात की डाइवर्सिटी ब्रीड्स इनोवेशन। इनफैक्ट ये मेरा मंत्र है, बिकॉज मुझे जैसे काम करते एकेडमिया में काम किया, फिर मैं इंडस्ट्री एसोसिएशंस में काम कर रहा हूँ जहाँ की हम इंडस्ट्री डिसीजन मेकर से मिलते हैं, और ये देखने में आया कि जिस बोर्ड में, मैं ऊपर से फिर नीचे की ओर जाता हूँ, कि जिस बोर्ड में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसमें उतने ही ग्रोथ है। मीन्स आई हैव सीन दैट डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। अब जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं, अब हमारा बहुत जैसे इम्पॉर्टेंट रहता है। इनफैक्ट आपने जैसे बोला, राहुल जी ने बोला और आपने बताई ESG के ऊपर। इनफैक्ट हर बोर्ड रूम डिस्कशन में हम देखते हैं कि ESG के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो ESG में देखते हैं कि अगर हम तीनों को अलग अलग कंपोनेंट्स को लें, तो ESG में मेरा अपना मानना है कि एनवायरमेंटल का जो कंपोनेंट है वो आई थिंक वो 70% का जो खाका है, जो उनका जो रेशियो है उसको वो ले रहा है, और जो गवर्नेंस का है वो अनदर 20% हो रहा है, बिकॉज ऑल कॉर्पोरेट एजेंसी, सबको ऑर्गेनाइजेशंस को कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स एज पर दी कंप्लाइंसेस वो पूरे करने ही हैं बाय ऑल मीन्स, वॉट एवर काम में। तो गवर्नेंस पे भी पूरा जोर है इन टर्म्स ऑफ डूइंग पेपर वर्क, डूइंग ऑल मैंडेट्स एंड कंप्लाइंसेस ऑफ ऑल द रेगुलेटर्स। जब हम सोशल की बात करते हैं तो सोशल में देखा गया कि विद इन सोशल जो ज़्यादा फोकस हो रहा है दैट इज़ ओनली ऑन मोर ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। It is very seldom that there is a capacity building particularly for mainstreaming the marginalized. अब since मैं एक स्टूडेंट हूँ, BRSR का बहुत ध्यान से मैं देखता हूँ। इनफैक्ट I also got opportunity to become master trainer in BSRSR by National Institute of Securities Market under SEBI. तो मुझे मौका मिलता है ये सारी, मैं जो इनकी BRSR की जो रिपोर्टिंग होती है, since all organizations have to put their report on the public domain, तो उसमें मैं हमेशा ये ढूंढता हूँ जो सोशल वाले में प्रिंसिपल 5 में जो 9 प्रिंसिपल्स जो डिफाइन करते हैं, कि इसमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो इसमें प्रिंसिपल का ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का आता है, उसमें पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी पे कितना जोर दिया गया है।
तो ये मैं इनफैक्ट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आई मे बी हैविंग लिमिटेड नॉलेज, बट जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, हार्डली कम अक्रॉस any of the reports. So I don't think more than 10% corporate are actually seeing, or they are actually having the footprints of PWD within the human capital system. तो उसके बाद जब मैंने ये पाया कि इस टाइप का हो रहा है, तो मैंने फिर सॉर्ट ऑफ हमने सोचा एज ए चेंबर, वी हैड इंटरनल डिस्कशन, हमारी एक अलग से टीम है, तो हमने बोला कि जब भी हम डिसीजन मेकर्स के साथ बात करेंगे, कॉर्पोरेट कैपिटल के साथ बात करेंगे, एक हम हमेशा उसमें इवेंजलाइज करेंगे, देयर हैज़ टू बी वन पर्सन इन बोर्ड फ्रॉम द PWD सेक्टर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखिए, अगर हमने देखा कि अगर वुमेन बोर्ड में होती हैं डायरेक्टर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मे बी एज ए डायरेक्टर, वी हैव सीन देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी दैट हैपन्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स टोटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ becoming sensitive, becoming more sort of compassionate towards the organization, and that's how the organization grows. So similarly, on the same line, agar we have the inclusion of PWD within the board at the board seat, I am sure the organization will go for a sea change. तो हमारा बहुत ये हम दायित्व बनाया हुआ हमने कि जब भी हम कॉर्पोरेट कैप्टन से मिलते हैं उसमें हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उस पर जोर डालें. दूसरा पॉइंट आपने एंटरप्रेन्योरशिप का बताया, और जैसे राहुल जी ने अपनी जो स्टोरी बताई, इनफैक्ट इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी. और एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन पीरियड्स फॉर स्टार्टअप कम्युनिटी, क्योंकि जो स्टार्टअप स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं अदरवाइज, और जो प्राइवेट सेक्टर का जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उसका जितना उनका समावेश जो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हो रहा है वो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ. So within startup, what we have seen, in fact, as a PhD chamber, we have got the opportunity to become the Startup 20 Program Directorate under G20. जैसे हमारा G20 प्रेसिडेंसी शुरू हो गई है 1 दिसंबर से, within G20 there is a Startup 20 domain also. तो हमें ये दायित्व मिला है कि पूरी इंडिया में जब हम जाएंगे, हमें 200 के करीब डिफरेंट प्रोग्राम्स करने हैं स्टार्टअप के ऊपर, तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमने सोचा है कि वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ स्किन इन द गेम वेर इन वी आर एबल टू मेन स्ट्रीम द मार्जिनलाइज्ड. और जब मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का हमारा हमेशा ये कॉरिडोर पर रहते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप के स्टार्टअप्स के लिए क्राउड सोर्सिंग के थ्रू और इन्वेस्टमेंट के थ्रू, पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स हु आर इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्पेस, उनको हम आगे लेके आएँ, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू द गेम चेंजर. इनफैक्ट अगर आप देखिए, टेक्नोलॉजी इज़ द बिगेस्ट एनेबलर फॉर एनी person, be it at the personal level, at the professional level, or at the organization level. So हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप 20 के जरिए हम असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ और उस टाइप के स्टार्टअप्स वो वर्किंग इन PWD डोमेन उनको भी आगे लेके आएँ, सो दैट देयर इज़ अ मोर इवेंजलाइजेशन, देयर इज़ मोर ट्रैक्शन दैट वी कैन क्रिएट. ये मेरे सब पॉइंट्स अपनी तरफ से. थैंक यू वेरी मच. जस्ट वन फॉलो अप क्वेश्चन हियर. आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि स्टार्टअप 20 अंडर G20 एंड G20 आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुना होगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, गूगल भी कीजिएगा. बहुत मान की बात है इंडिया के लिए कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में है. तो इस समय सबसे ज़्यादा जैसे वर्ल्ड का जैसे अटेंशन है वो हमारे ऊपर है. तो ये स्टार्टअप 20 के लिए अगर कोई आपसे ज़्यादा पूछना चाहे या अप्लाई करना चाहे तो क्या कर सकता है? इसके लिए आप इनफैक्ट अभी जैसे हमारा वेबसाइट पर सारी डिटेल्स अब हम डाल रहे हैं, बिकॉज अभी इसी महीने से, इसी हफ्ते से सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है. विद इन स्टार्टअप 20 3 डोमेन बनी है, 3 ट्रैक्स बने हैं. एक है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें कि AIVCs के लिए है और क्राउड सोर्सिंग के लिए है. दूसरा है ट्रैक है सस्टेनेबिलिटी एंड SDGs, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक. एंड थर्ड इज़ द पार्टनरशिप्स एंड इंक्लूजन. सो इन तीनों ट्रैक में हम लोग अलग अलग स्टेट्स में जाके हम अलग अलग रोड शोज़ कर रहे हैं, और शुरू हो गया, हमारा कैलेंडर बन गया है. तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपका स्टार्टअप कोई भी इस टाइप का रुझाव है आपके, पर्टिकुलरली इन असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ और एनी मॉडल और एनी प्रोडक्ट दैट इज़ बेसिकली डायरेक्टेड फॉर PWDs, काइंडली राइट ए मेल टू अस. मैं सार्थक से मैं गुजारिश करूँगा कि मेरा मेल ID, आप अगर डेलीगेट्स के आपके पास रजिस्ट्रेशन लिंक है या कोई इस टाइप का लिंक है, आप प्लीज़ मेरा उसमें ईमेल डाल दीजिए. और जहाँ भी हम कोशिश करेंगे, जिस स्टेट्स में भी अगर उस टाइप के स्टार्टअप्स आगे आना चाहें, विल ट्राई टू ब्रिंग देम इन द पिक्चर. थैंक यू वेरी मच. मेरी गुजारिश है, जो भी YouTube और Facebook पे इस समय सार्थक के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें जतिन सिंह जी की ईमेल ID आप पब्लिश कर दें ताकि लोगों को सामने मालूम पड़ सके. थैंक यू वेरी मच जतिन जी. आई वुड नाउ लाइक टू कम टू डॉक्टर नीरू कुमार. नीरू जी, we have talked about ESG. The other very important term is diversity and inclusion, जो जतिन जी ने बात की.
तो नीरू जी के बारे में बता दूं कि ये इनको पद्मश्री मिला इन 2021 फॉर टायरलेस वर्क इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जिसको DNI भी बोलते हैं और अब शायद DEI भी बोलते हैं। ये नेशनल आइकॉन है, बोर्ड मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव कोच हैं, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हैं, और इन्होंने एक कंपनी चलाती हैं आस्क इनसाइट्स, वुमेन ओन्ड कंपनी है। उसमें DNI के बारे में ये कंसल्टिंग करती हैं और बड़ी बड़ी कंपनी लाइक यूनिलीवर, गूगल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब में इन्होंने भागीदारी दी है, अपने एक्सपर्टीज शेयर की है। तो इनको खुद देखिए एक तरह की डिसेबिलिटी है, लेकिन उसको छोड़ के इन्होंने इतना बड़ा कारोबार इन्होंने शुरू किया है और विमेन ओनली के। तो मैं ये चाहता था कि नीरू जी आप ये बताएं कि जब कोई एक एजेंडा सेटअप करना पड़ता है फॉर कॉर्पोरेट ऑन DNI, और उनके लिए क्या पाथ होगा आगे, कैसे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, कैसे, क्योंकि हर जगह DNI का चैप्टर शुरू हो रहा है लेकिन मालूम नहीं लोगों को करना क्या होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सार्थक के साथ भी मतलब हम लोग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं कॉर्पोरेट के साथ, और मैंने भी 1-2 जगह मैंने इस पर टॉक भी किया है, और उसमें जब जॉब मैपिंग, ट्रेनिंग ऑफ पीपल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब रोल्स एक्सेट्रा वो सब करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, अब वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है तो इसका मतलब क्यों नहीं हमारे दिव्यांगजन को ज़्यादा जॉब मिले रादर देन अ पर्सन विद मतलब विद नो डिसेबिलिटी लेट्स से। तो इस सब का क्या इफेक्ट हो रहा है, एंड व्हाट डू यू सी द मार्केट एज, हाउ डिड यू वर्क ऑन दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सार्थक फॉर इनवाइटिंग मी, और अतुल जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये टॉपिक शुरू किया कि यस DNI एंड DEI। मैंने ये आस्क इनसाइट्स और ये काम मैंने शुरू किया 15 साल पहले, जब इस मुद्दे पे बहुत कम लोग बात कर रहे थे। कॉर्पोरेट इंडिया में तो शायद कोई कर ही नहीं रहा था, और उस वक्त डाइवर्सिटी को माना जाता था सिर्फ जेंडर। यहाँ तक के लोग कहते थे कि वी हैव डाइवर्सिटी इन आवर टीम, मतलब वी हैव विमेन इन आवर टीम। अब वो एक्सपैंड हो रहा है एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग कि डाइवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ है, एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। So actually I am a medical doctor and I came into this field. So Rahul, मैं unemployed नहीं थी, बेरोजगार नहीं थी। In fact I gave up a stable, I was in CGHS, Central Government Health Services, and I gave up a stable, respectable doctorate to come into this field because अतुल जी जैसे आप कह रहे थे, मेरे को बचपन से खुद disability and I really wanted to come into this field. In fact मैं तो वेट कर रही थी इस दिन का जो आज आ रहा है कि डिसेबिलिटी का अरीना और अवेयरनेस इंडिया में खुलने लग जाए। ग्रोइंग अप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंस रहा है कि कितने चैलेंजेस थे, एंड देयरफॉर दैट्स व्हाई आई हैव बीन वेटिंग के द इंडियन पब्लिक मार्केट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉर्पोरेट्स start understanding how much people with disabilities can contribute, whether it is from home or whether it is in the workplace. तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी है, लाइक आई सेड, पहले तो सिर्फ जेंडर था। सबसे पहले तो उनको ये समझाना पड़ता है कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में ये सारे लोग भी आते हैं, वेदर इट इज़ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, वेदर इट इज़ द LGBTQ कम्युनिटी। इट्स नॉट ईजी टू स्टार्ट दीज कॉन्वर्सेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफन आई एम अटैक्ड, क्योंकि जब हम इक्विटी वाला वर्ड ई लाते हैं ना, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या है, पहले तो बहुत लोग समझते नहीं। इक्विटी का ये मतलब है टेकिंग केयर ऑफ स्पेसिफिक नीड्स। आई से इक्विटी का मतलब है दो, वन टेकिंग केयर ऑफ स्पेसिफिक नीड्स, एंड सेकेंड मेकिंग अप फॉर द बैकलॉग ऑफ द पास्ट। If there have been a group of marginalized people who have had several disadvantages in the growing up years, तो उनका वो developmental programs कह लो, policy differences कह लो, has to be there, and one of them could be work from home. But और quotas कह लो, mandate कह लो, reservation कह लो, but the dominant population objects to that. They say we are the qualified people, हमने भी उतनी मेहनत की है. Why should we lose our seat to a person who is from a marginalized group? ये इक्विटी का मतलब हमें समझ नहीं आता, तो उसमें बहुत बहस होती है, लड़ाई तक होती है।
to really explain this to the leaders and to the entire population of the organization itself is a very big thing. So just yesterday I was doing a leadership session somewhere and one of the leaders asked me, क्या ज़रूरत है मुझे differences के बारे में सोचने की? मुझे तो ये देखना है कि कौन क्या ला रहा है, who's bringing what to the table, merit क्या है? I said, it's not enough to bring everyone to the same level playing ground. If somebody needs a ramp, then it's not enough to put them all at the fence. Those specific needs have to be looked after. If I am driving a mobility scooter, I cannot go to the coffee station and get a coffee for myself and also drive my scooter. I would like my team members to know that. I would like my organization to know that. Only then we will be able to progress further. जो आपने जितेंद्र जी से क्वेश्चन पूछा था डाइवर्सिटी ऑफ थॉट का, फिर ये लाना पड़ता है. Actually, it's a social and humane cause. But when people don't understand it, we have to bring it as a business case, which is also a very big reality, that innovation, diversity drives innovation. Professor Scott Pegg की research है कि एक mental toolbox होता है, knowledge, perspectives, and problem solving. ये mental toolbox है. And this is how diverse group can bring different things on the table and bring diversity of thought. So then we convince it through this way, that why equity is needed in numbers, in policies, and in things like you just mentioned, work from home, etc. So it's a long journey. Jaldi jaldi mein kuch nahi hota. When we begin work in an organization and we start to making them inclusive in every aspect, I say minimum 3 years, up to 5 years में जाके आपको कुछ थोड़ा बहुत result दिखने लग जाएगा. Thank you. This is very, something new that it takes nearly 5 years to get this thing done. And I would just appreciate कि भाई इसमें थोड़े case studies और publish कीजिए कि भाई कैसे होता है, मतलब how have certain organizations benefited from, as you said, कि diversity leads to innovation or diversity leads to growth or whatever it may be. I can only say कि I was in Kenya and मैं शायद only non-Kenyan उनके बोर्ड में था बार्कलेज बैंक में, और वही हमारी आदत होती है कि भाई यहाँ पे इंडिया में लोग यूज़ करते हैं द वर्ड ब्लैक मनी. अब वहाँ ब्लैक मनी आप बोलें तो सब लोग मुझे घूर के देखते थे ये क्या बोला है. हमारे तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में लिखा होता है ब्लैक मनी, वहाँ कहते हैं मनी इन द ग्रे मार्केट, क्योंकि वो लोग अगर उनके रंग काला है इसका मतलब वो नहीं कि वो जो उनको आप मनी के साथ ब्लैक मनी करते तो वाइट मनी फिर ब्लैक मनी हमारे इंडिया में बोलते रहते. लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे और आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आप यू कांट यूज़ दैट वर्ड, जस्ट नॉट अलाउड. तो एक तरह का है कि हमको इस चीज़ के लिए सेंसिटाइज होना ज़रूरी है. मैं एक आई विल टेक ब्रेक नाउ टू गेट सम पीपल ऑनलाइन. आभा जी हैं, आप आभा जी, खेतूपाल जी, हाँ आभा जी आपका स्वागत है. और आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? हाँ जी, नमस्कार. अच्छा, नमस्कार, मैं सुन पा रही हूँ आपको. अच्छा, थैंक यू अतुल जी. तो आभा जी इंडियन डिसेबिलिटी राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, काउंसलर हैं, ये फाउंडर हैं क्रॉस द हर्डल्स, एक काउंसलिंग एंड एजुकेशन रिसोर्स वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर PWDs. इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं इनको, और 2016 में नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ PWDs, बेस्ट रोल मॉडल, और वो रेसिपिएंट हैं हेनरी विस्काडी अचीवमेंट अवार्ड और 100 विमेन अचीवमेंट अवार्ड 2019 में. और आभा जी ये वन ऑफ द 4 प्रोटैगनिस्ट हैं डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड एक्सेस, ACCESEX, एक्सेस. She has authored Disabled Lives Matter, Warrior on Wheels, and several other books and research publications. तो आभा जी आपको शायद मैं बड़ा इंटरेस्टेड था ये मोबाइल ऐप के सुन के आपके बारे में, कि हमारे यहाँ भी इन्होंने सार्थक ने एक कैब सारथी बनाया है, और हमारा मकसद ये है कि कोई भी दिव्यांगजन किसी भी हमारे देश के किसी भी कॉर्नर में हो, वो उस मोबाइल ऐप पे आए और उस मोबाइल ऐप से उनको हम
रिलायबल इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है व्हाट्सएप में, मतलब हर तरीके की चीज़ें हो रही हैं। रिलायबल इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो अभी आज का करंट है, हम उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं, राइट्स उनके क्या हैं, स्कीम्स क्या चल रही हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं, और यहाँ तक कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस, व्हाई नॉट कि भाई। तो मैं ये चाह रहा था कि आप भी अपने इस ऐप के बारे में बताएं, और हम ऐसी कोई एक ऐसी समर्थन प्रणाली बनाएं जिसमें हम compete ना करें, कोलैबोरेट करें, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ हमको चढ़ना है कि इतने सारे लोग PWD सेक्शन में हैं कि भाई हमको पूरी समाज को एक तरह से सेंसिटाइज करना है कि भाई दे ऑल पार्ट ऑफ अस, देयर इज नथिंग कॉल्ड विद डिसेबिलिटी, विदाउट डिसेबिलिटी। अगर सब कुछ सेम हो जाए तो इस एवरीबडी इज इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो कैन यू लेट अस नो मोर अबाउट दिस प्लीज? हाँ जी, थैंक यू एवरीवन एंड वेरी गुड आफ्टरनून माय को पैनलिस्ट। जहाँ तक ये ऐप की बात है, ये मैंने खुद सिंगल हैंडेड इसका सारा कंटेंट भी प्रिपेयर किया था, क्योंकि मुझे लगा शायद मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, रिलायबल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज एम्पावरिंग। अगर आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल रही है तो यू आर ऑटोमेटिकली एम्पावर्ड, क्योंकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लूँ वहाँ पर, तो मैं आई एम एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम, और मुझे सर्विसेज की ज़रूरत है। तो कौन सी सर्विस कहाँ मिलती है? सो आई एम्ड इट टू बी अ रिसोर्स सेंटर, कि अगर 24 आवर्स केमिस्ट कहाँ है, या ब्लड बैंक्स कहाँ हैं, या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के जो पेरेंट्स हैं उनको स्पेशल स्कूल्स की आवश्यकता है, और कहाँ से उनको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मैंने पूरा एक तरह का एक रिसोर्स बैंक रेडी किया था, और मेरा खुद का यही मानना था कि मुझे सर्विसेज चाहिए, तो उन सर्विसेज का वेदर दे में बी द स्कीम्स, और या किस तरह से एजुकेशनल बोर्ड्स आपको अकोमोडेशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्क प्लेसेस अकोमोडेशंस, और वट एवर रिलेटेड टू दैट। फिर कुछ टाइम बाद मैंने ये रेडी तो हुआ मेरा, बट आई मूव्ड इनटू द लाइक प्रिपेयरिंग एजुकेशनल मटेरियल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और मेरा अब वो फोकस है कि मैं उस ऐप को और थोड़ा सा जर्नलाइज करूँ। इट इज़ इन मेकिंग नाउ, कि इस तरह से कि कुछ जो चीज़ें जो जैसे सेल्फ पेस्ड कोर्सेज आजकल अगर हम वेस्ट में देख लें तो सेल्फ पेस्ड कोर्सेज बहुत ज़्यादा इन हैं आजकल, एंड स्पेशली आफ्टर कोरोना, कि जो एजटेक इंडस्ट्री है वो बहुत अपकमिंग है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, चाहे वो स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हो या एज अ टीचर हो। अ टीचर विद डिसेबिलिटी कैन टीच इन एन एडटेक कंपनी। और इस तरह से तो अब मेरा जो ऐप है, अब इस समय आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑफ द क्या बोलते हैं वहाँ पर है नहीं अभी, क्योंकि वो अब मैं उसको एक नया रूप दे रही हूँ, और बहुत सून, मतलब इन अ मंथ्स टाइम और 15 डेज टाइम, क्रॉस द हर्डल्स का ही ऐप विद इंफॉर्मेशन सेंटर एज अ रिसोर्स, और उसमें मैं कुछ सेल्फ पेस्ड कोर्सेज भी ऐड कर रही हूँ। सेल्फ पेस्ड कोर्सेज इन अ वे, जैसे सेक्सुअलिटी एजुकेशन है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज डू नॉट गेट सेक्सुअलिटी एजुकेशन, स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटीज, उनकी सेक्सुअल हेल्थ मेंटेनेंस पे, तो वहाँ एक शॉर्ट कोर्सेज हैं, एंड वहाँ जो कोर्सेज मैंने जो कंटेंट रेडी किया है, जो लेसन्स बनाए हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ एनी चार्जेस हैं। वो किसी को भी उसमें सिर्फ लॉग इन करना है, जस्ट रजिस्टर करना है विद सम लाइक एज रिलेटेड लेसन्स आर देयर। और इवन अभी एट प्रेजेंट मैं सेल्फ एडवोकेसी कोर्स रेडी कर रही हूँ फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, क्योंकि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ एक बहुत ही मार्जिनलाइज, मतलब मार्जिनलाइज विद इन द मार्जिनलाइज सेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से उस ऐप का मैं अब आपको बहुत जल्दी वो स्वरूप दिखेगा कि वो चेंजेस ला रही हूँ उसमें। एंड फॉर द नॉन डिसेबल्ड पीपल, पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज, तो एक छोटा उसमें एक वो भी है कि डिसेबिलिटी एटिकेट्स एंड अवेयरनेस। एक छोटा है कि हाउ टू राइट अबाउट डिसेबिलिटीज, कि जर्नलिस्ट शुड लर्न हाउ टू राइट अबाउट डिसेबिलिटीज, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे शुड यूज, क्योंकि लैंग्वेज बहुत मैटर करती है
किसी को भी ऊपर या नीचे गिराने में। तो इस तरह से एटिकेट्स का कोर्स है, वर्क प्लेस एटिकेट्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे किस तरह से डिसेबिलिटी एटिकेट्स होने चाहिए या अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का जब हम अगर ख्याल रख पाएँ, इनको कंसिडर कर पाएँ, तो आई थिंक इंक्लूजन अपने आप हो जाएगी। और कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि किस तरह से हम सबको इंक्लूड करके चल सकते हैं, और टेक्नोलॉजी उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो ऑलरेडी मेरा ऐप है वो रिसोर्स सेंटर तो है ही है, एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला, बट सून इसमें कुछ सेल्फ बेस्ड कोर्सेज 3 और 4 कोर्सेज आपको भी बहुत जल्द दिखेंगे उसमें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मैं यही कह सकता हूँ कि आप सार्थक वालों से भी बात कीजिएगा ताकि हम वी कैन synergize better, that's it. जी, thank you so much. Now I'll come to Richa ji. Richa Sahani, she's an IT professional and यहाँ IT में इन्होंने बैचलर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लॉय इन बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम ICFAI। इनका 2 दशक का वर्क एक्सपीरियंस है एज एन एंटरप्रेन्योर और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड अ डेवलपमेंट सेक्टर पर्सन। और इनका जुनून बिल्कुल रहा सोशल सर्विस पे, जिस due to which he has joined Atypical Advantage as head of public relations, and she is currently pursuing an advanced management program in public policy at Indian School of Business. तो रिचा जी आप बताइए कि what motivated Vineet Saraiwala at Atypical Advantage to start his venture, and you were mentioning about micropreneurs. तो micropreneurs क्या हैं? मतलब ये अभी तक तो एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे, अब माइक्रोप्रेन्योर्स पे आगे बात, तो इसको जरा आप एक्सप्लेन कीजिए। Thank you, Atul ji. And first of all, I would like to thank Sarthak for this wonderful initiative and for having us here today. It is an honor to be representing Atypical Advantage on behalf of Vineet Saraiwala. तो विनीत सरायवाला जो हैं वो खुद एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। उनको एक कंडीशन है कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा विच इज़ अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, जिसमें कि देखने की क्षमता ईयर ऑन ईयर कम होती जाती है। और वो IIM बैंगलोर से उन्होंने ग्रेजुएट किया और फ्यूचर ग्रुप के साथ वो इंक्लूजन लीड की तरह जब काम कर रहे थे, और उनके पास रेज्यूमेज आते थे पीपल विद डिसेबिलिटी के, और कोविड के समय में सडनली ये रिज्यूमेस की जो तादाद है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड विनीत ने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं जॉब में रह करके कितने लोगों को हायर करवा पाऊँगा, 5, 10, 100। उनको लगा कि क्यों नहीं हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते जो एट स्केल लाइवलीहुड जनरेट कर सके इन अ सस्टेनेबल मैनर फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। नॉट ओनली जैसा कि हमसे पहले पैनल डिस्कशन में बात हुई, कॉर्पोरेट्स कई बार सेंट्रल जगहों पे होते हैं, तो रिमोट एरियाज़ में क्या चीज़ पहुंच सकती है, तो टेक्नोलॉजी पहुंच सकती है। अगर हमारा फ़ोन पहुंच सकता है, इंटरनेट पहुंच सकता है, तो अगर हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें जिसके ऊपर कि PWDs खुद को रजिस्टर कर पाएँ और उसके बाद कॉर्पोरेट्स भी खुद को वहाँ पे रजिस्टर कर पाएँ, और उसके दोनों का मैच करके वी कैन क्रिएट सम जॉब, दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया। तो इस तरह से इसकी मोटिवेशन, दैट्स हाउ ही गॉट मोटिवेटेड। उसके अलावा जो एटिपिकल एडवांटेज की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स है कि विनीत ने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ करा कि ज़रूरी नहीं कि सभी पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो मेन स्ट्रीम जॉब रोल्स या फुल टाइम जॉब रोल्स में ही जाना चाहेंगे। बहुत से ऐसे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके टैलेंट कहीं और है, जैसे कि उनका आर्ट वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, या वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, जैसे मैजिशियंस हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ मसूस विद डिसेबिलिटीज़, यू नो, फिजियोथेरेपिस्ट्स विद डिसेबिलिटीज़, फोटोग्राफर्स विद डिसेबिलिटीज़। तो इन सब वर्टिकल्स को हम किस तरीके से उन लोगों के साथ जोड़ें जो इनके स्किल सेट्स को यूज़ करके एक डिग्निफाइड वे में, सस्टेनेबल वे में लाइवलीहुड जनरेट करा सकते हैं। तो चौथी चीज़ जो उन्होंने देखी कि बहुत सारे NGOs हैं जिनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं जो PWDs के साथ काम कर रहे हैं, मगर मे बी मार्केटिंग एंड मार्केट लिंकेज की कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये सोचते हुए जो एटिपिकल एडवांटेज है, करेंटली हमारे 4 वर्टिकल्स हैं
वन इज़ इंक्लूसिव हायरिंग, जिसके अंदर कि हम कॉर्पोरेट्स के साथ बात करते हैं, वो लोग हमारे पास जॉब लिस्टिंग्स पोस्ट करते हैं, और हमारे पास रिज्यूमेज होते हैं जो NGOs के थ्रू भी आते हैं। हमारे 700 से अधिक इस समय NGOs जुड़े हुए हैं। उसके अलावा एक बहुत ही सिंपल ईमेल के थ्रू कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी अपना रिज्यूमे हमें भेज सकते हैं। और 125 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ हम दिसंबर 11, 2020 में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, और 2 साल के छोटे से सफ़र में हमने 125 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ हम काम कर चुके हैं। इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा वेरीफाइड टैलेंट प्रोफाइल्स हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। 100 से ज़्यादा हम कॉर्पोरेट शोज़ कर चुके हैं। और सबसे जो अहम बात है, कोविड के दौरान हमने वर्चुअल कॉर्पोरेट इवेंट्स किए। तो हमारे वर्चुअल सिंगिंग इवेंट्स हुए, पीपल विद ऑटिज्म जिनको कि कई बार कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, उन्होंने 300 से ऊपर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए डूडलिंग वर्कशॉप्स या इस तरह की कॉर्पोरेट एंगेजमेंट इवेंट्स कराए। 1000 से ज़्यादा लाइवलीहुड हम 2 साल में जनरेट कर चुके हैं। 60 लाख से ज़्यादा आर्टिस्ट अर्निंग्स हम दे चुके हैं। तो ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो एटिपिकल एडवांटेज इसलिए हम लोग ये कर पाए क्योंकि टीम इज़ वेरी पैशनेट। उसके अलावा वी आर वेरी क्लियर ऑन द वर्टिकल्स आर वेरी वेल डिफाइंड, and we just want to grow in this space, so that's the whole idea. And the platform is very robust. जो हमारी बैकिंग टेक्नोलॉजी है, जो इंटीग्रेशन है, that is very robust. So अभी हाल ही में हमने ये भी रियलाइज़ करा कि there are skill gaps, तो हमने एटिपिकल अकेडमी लॉन्च करी है, एक अपनी कम्युनिटी लॉन्च करी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कि आर्टिस्ट की अगर बात करूं तो 150 से ज़्यादा आर्टिस्ट जिनके 500 से ज़्यादा आर्टवर्क्स हैं इंडिया की 20 स्टेट से, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो द आउटरीच हैज़ बीन फिनोमिनल, and because we've also been able to work with online platforms like Flipkart, our distribution outreach of our products and artwork again has been really great. So this is some of the key things that motivated Vineet. Coming down to the micropreneur thing. Now अगर हम इन सभी आर्टिस्ट्स को, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट में हैं या वो पेंटिंग करते हैं, ये सब माइक्रोप्रेन्योर्स हैं अपने आप में, क्योंकि जो उनका एक स्किल है उसको लेवरेज करके, अपनी कैपेबिलिटी को लेवरेज करके वो अपने लिए लाइवलीहुड जनरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एटिपिकल एडवांटेज इज अ जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ विनीत, plus it's a journey of enabling micropreneurs with disability. So I think there's a critical need for platforms like this in today's age, जो कि connect करे सभी micropreneurs को जो घर से काम कर सकें. And COVID has proven that anybody can work from home if they have the right skill set. Sit down. Those words I would like to share one small Thank you, thought. Richa ji. Very impressed and very informative. मैं उसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सार्थक ने There is, one organization called PD Light. के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें एक सेपरेट They do a fantastic thing फॉर दिव्यांग for village. तो They take the team to the village and they do the mapping of the whole village. And then they identify how many people are there who are entitled to get some benefit which they are not getting. For example, there's a widow who should be given pension. There's a child who should go to the school. There's a person with disability who should have a wheelchair. There's a youth who should go for gainful occupation. They make a list. The thing they do is, through their team, everybody identified gets a wider public within गवर्नमेंट हो जाएगा। प्लस जैसे अभी न्यू ईयर्स आ रहा है, अब न्यू ईयर्स में कोई मतलब गिफ्ट देता है, कॉर्पोरेट गिफ्ट देता है, वैसे भी इंडिविजुअल गिफ्ट देता है विद इन द गवर्नमेंट सेक्टर इटसेल्फ, तो व्हाई नॉट समथिंग मेड बाय अ हैंडीक्राफ्ट पर्सन, और तो वो ज़्यादा देर तक घर में रखने के लिए मन करता है, रात दिन के भी कुछ मिलता है वो जाके थोड़ी देर में डस्टबिन में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ हो तो जस्ट टू कीप इन टच विद, आई एम सेइंग कि दिस इज समथिंग दैट वी कैन वर्क विद and we can take it forward also. Absolutely, it's really great, and as you rightly pointed out, ये सभी artworks, because they are story centric, there's a story associated with each artwork. Yes, people do value them much more than when they buy it. Thank you, Rita ji. Now I'll come to Dr. Bhushan Punani ji. So can we see you on screen?
Bhushan ji, can you hear us? Kunani? Yeah. So you can see us and we can hear you. Okay, sir. First of all, good evening, everybody. I'm sorry we got little late, and I'm joining from the mobile. Actually, this topic, entrepreneurship at global level, is excellent, and I really support it very much. But it definitely is going to be a very hard task. And if you have to do that, there are 6 parameters which I think all of us need to promote. First of all, they should have the right level of education, which is now happening. Our NEP and many other efforts and the reservation is enabling them. Now, most important, entrepreneurship needs some skills. So unless we tie up with some skill development, which Sarthak has already started, skill development ministry has also started, but it has to reach to the youth with disabilities. And that's a very big challenge, that how to give them the skills which are required at the international level. That's a very big challenge, and I think we have to surmount it by a lot of hard work. Then the biggest way to reach global is to have a technology, the appropriate technology. Unless we have the new thing, newer technology, I'm sure this target of global entrepreneurship will be very difficult. So all the youth whom we select, we identify, we motivate, they should be very good at technology, and then they need to have a right knowledge of the right type, how to sell your products, your services, do your services at global level, which is a challenge by itself. And that challenge is very important, and that needs to be fulfilled by a lot of guidance, hard work, and of course, a lot of financial support is required. So actually, all these 5 factors when I'm talking, they are available in one or other way, but somebody has to consolidate them, make them available to the youth, motivate them. And I have very good news to share with all of you. We have very leading Entrepreneurship Development Institute of India, which is doing a pioneering work in this country for developing youth for entrepreneurship. I'm very happy to last year, this institute has taken up a project disability empowerment, which is a very, very good development. So now people with disabilities can take benefit of training, involvement, counseling, guidance, participation in activities of EDI, which is a very good development. I'm very glad that EDI agreed to do that, and the government of Gujarat for the time is funding the whole project, which is a welcome step. Now, we need to enhance visibility of our youth with disabilities. And we at BPA have followed a new method of seeing that our youth are visible world over and exposure at international level. As you know, Bhavina, she won the silver medal in Tokyo Paralympic. Sonal and Bhavina again won the gold medal in Commonwealth. And we have a football team which is going to play at the international level, the chess team level. So, are visible at global level, motivated to go for global entrepreneurship. You'll be very happy to know. Keep your both hands ready. That Bhavin has a professional table expert now. She has already received cash award of 7 crore. This is the highest money available to a person with disability in this country. And she has got a job. Sonal has also got a job. And now another thing we are doing is to motivate admission of our youth disabilities in the premier institute. For example, all will be again happy to know that because of Rights of Persons with Disabilities Act, there is a 5 reservation institutes. Every you get admitted institutes, which is a step toward motivating them as after they're going to survey and to start some enterprises or some which is a step in the right direction. Youth with disabilities, admission in the law universities, IITs, in other premier institutes. See, unless guide them, encourage them, enable them to go for these, it will be possible to at a global level. So one more thing we have done, Gujarat, and Babukri Foundation, which has
providing scholarship to such youth. Such youth are able to this scholarship and jobs abroad. So this is another very good development. People are going abroad, develop, and they good points. I request all of you who are listening to me, if you really want people to go at global level, they should have the right qualification, right training, right aptitude, right access to finances, right access to their knowledge, and willing. So if the financial done, I'm sure Sarthak can take lead as they are level to promote at global level. I wish everybody a great luck, and I'm sure in the years to come, we'll have a lot of entrepreneurs who will be working at global level. Thank you. थैंक यू भूषण जी. मैं ज़रा ऑडियंस को बता दूं, इनका इंट्रोडक्शन में पहले नहीं दे पाया, लेकिन ये भूषण जी जनरल सेक्रेटरी फॉर द ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन अहमदाबाद के हैं और वन ऑफ द लीडिंग डिसेबिलिटी डेवलपमेंट एनजीओ है, और वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट उसके प्रेसिडेंट भी हैं वेस्ट एशिया के. और उन्होंने बीपीए, आपने ये IIM अहमदाबाद के पढ़े हुए हैं. 1978 IIM अहमदाबाद से पास आउट होने के बाद इन्होंने सीधे ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन ज्वाइन करके उसको आज इतना स्केल अप कर दिया है. तो इनसे कोई अगर सीखे कि भाई सस्टेनेबल एनजीओ कैसे बनता है, वो आप भूषण जी से सीख सकते हैं. तो थैंक यू भूषण जी, एंड आई अप्रिशिएट आपने कहा कि एजुकेशन, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, राइट नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. और मैं तो एक चाहता हूँ कि एक जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखिए इसकी कोई एज नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप. ये नहीं कि आपको यंग ही होना है या मेरी तो अब उम्र निकल गई. आप गूगल में पढ़िएगा, एज 65 पे कर्नल सैंडर्स नाम के एक शख्स थे, उन्होंने केंटकी फ्राइड चिकन शुरू किया 65 इयर्स की उम्र पे, और वो $1 बिलियन कंपनी बन गई है. आज तक सब लोग जो नॉनवेज खाते होंगे उनको मालूम है केंटकी फ्राइड चिकन के बारे में ज़्यादा. वर्ल्ड ओवर में ग्लोबल हो गई. दैट्स व्हाट मीन्स ग्लोबल. के यूएस में शुरू हुई और आज शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ पे ये KFC नाम मिलता है. KFC नाम है केंटकी फ्राइड चिकन. ऐसे ही 19 इयर्स पे देखिए जेप्टो के हैं वो, और ये जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओला, ऊबर, पेटीएम, अमेज़ॉन, ये सब के सब एक ज़माने में एक स्टार्टअप ही होते थे और आज देखिए $1 बिलियन कंपनी के वैल्यूएशन पे आगे बढ़ रहे हैं. तो देयर इज़ नो, कोई उम्र नहीं है आपके एंटरप्रेन्योर की. जब आप में जुनून आ गया और आपने सोचा कि मैंने ये करना है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया. प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब कौन सी समस्या का आप समाधान कर रहे हैं और किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं. तो वो बस उतना जुनून आना चाहिए कि मैंने ये करना है, और मैंने करना है तो बस फिर तो you get the sky is the limit for you. So with this, I mean, I'd just like to ask the panelists to give a, let's say, a 1 sentence or 2 sentence kind of message to our entrepreneurs itself or to our potential entrepreneurs कि वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए ताकि उन्होंने जो भी शुरू किया वो किस लिए शुरू किया. तो मे बी डॉक्टर नीरू, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर. So I think one of the message that I would like to give to all the potential entrepreneurs is, like you said, there is no age. There is also no age to stop learning. If you are willing to learn from everything and everywhere around you, be a student, an innocent student, without any ego and without any restrictions of timing and bandwidth, because entrepreneurship means constantly reinventing. And you can only reinvent if you are constantly learning yourself. So I think that is the mantra that has kept me going, from my global partners, from the corporates and partners I work with, from everybody around me. I think I'm soaking, including this one, I'm soaking every opportunity to learn. So that's my message to the entrepreneurs. Thank you. Learning has no age, education has no age. I think that is very important mantra. Yeah. तो मैंने कुछ
20 साल एज एन एंटरप्रेन्योर भी काम किया है, और मेरी बस एक ही लर्निंग है कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में फेलियर कोई शब्द होता ही नहीं है। या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो, बस। और जब वक्त बदलता है, आपको हो सकता है अपने बिजनेस मॉडल को बदलते हुए वक्त के साथ में इवॉल्व करना पड़े, उससे घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि हम फेल हो रहे हैं, रुकना नहीं है। इफ़ यू कीप ऑन मूविंग you will reach somewhere. So an entrepreneur has to be sure that they should never be scared of failure. That's it. जीतो और सीखो और सीख के फिर जीतो, ये तो एक अच्छा बड़ा नाइस साइक्लिकल टर्म है, बड़ा अच्छा मंत्र है। ओके जतिन जी। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा जो मैं मंत्र समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो है कि अनलर्न एंड रीलर्न। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हम सब में बहुत क्रिएटिविटी होती है, बहुत आइडियाज़ होते हैं, बट उन आइडियाज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या टूल्स होने चाहिए, क्या मॉडल्स होने चाहिए, क्या टेक होना चाहिए, वो हमें नहीं आता। तो मेरा ये मानना है कि हर एंटरप्रेन्योर को एक इनोवेटिव स्किल्स बहुत सीखनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्ली हमारे पास दिन में 1000 क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, बट हार्डली 1000 में से 1-2 हमें समझ आते हैं, बट 1-2 में से ऐसे करोड़ों लोगों में से वो 1-2 लोग हैं जो उसको यूजिंग इनोवेटिव स्किल्स उनको मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये सबको बोलता हूँ, हर एनजीओ को, हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, इवन इन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ ऑल्सो, कि इनोवेटिव स्किल्स का एक जो समावेश है, उसकी एक नॉलेज है, वो बहुत ज़रूरी है। नॉलेज तो सबको है, बट नॉलेज इन एक्शन इज स्किल्स। तो हम इनोवेटिव स्किल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर वो उसको लोगों को हम बताना शुरू कर दें एंटरप्रेन्योर्स को, तो आई एम श्योर बहुत सारे आइडियाज़ जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो इनोवेशन में बदल के, और वो दैट कैन बी द बेस्ट मॉडल्स फॉर द बेस्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल्स फॉर कंज्यूमर्स एज वेल एज कस्टमर्स। थैंक यू। Thank you. Unlearn, relearn, and move forward. I mean, that's a very important thing in current day and age, जहाँ टेक्नोलॉजी से इतना मेजर चेंजेस आ रहे हैं कि भाई अब देखिए, मैंने कहने को तो मेरे पास MBA मार्केटिंग का, लेकिन आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, वो तो हमको सिखाई नहीं थी 1989 में। तो मेरी वो डिग्री का क्या करूँ मैं, तो मुझे आज सीखना पड़ रहा है। तो मैं वही चीज़ का आजकल करता हूँ, मैं बच्चों से सीखता हूँ कि भाई ये Pinterest और मतलब इनके कस्टमर सेगमेंट्स क्या हैं, क्या किस तरह से एडवर्टाइज करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ प्रीटी इम्पॉर्टेंट थिंग। या राहुल। Thanks, sir. I am quite inspired by Gaur Gopal Das, and I'll quickly narrate a story. एक बार एक छोटा सा बच्चा गुब्बारे वाले के पास जाता है, बोलता है भैया किस रंग का गुब्बारा है? बोलता है लाल। कहते हैं अंकल ये उड़ेगा? बोले हाँ बेटा उड़ेगा। फिर कहता है, फिर वो देखता है ये कौन से रंग का गुब्बारा है? बोला नीला। ये उड़ेगा? हाँ बेटा ये भी उड़ेगा। फिर बोलता है ये कौन सा गुब्बारा है? बोले पीला। ये उड़ेगा? ये भी उड़ेगा। अब गुब्बारे वाला परेशान हो जाता है, बोलता है बेटा रंग से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें जो हवा है उसकी वजह से गुब्बारा उड़ता है। सो इन आवर लाइफ्स इट डजंट मैटर what gender, what age, what ethnicity, what medical ability we come from. It's the attitude in life which makes an impact. If you have the right attitude, there is no way that this balloon will not fly. And as he also says, life is that race जहाँ पे situations आती है, problem आती है, और उसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो भाग लो या भाग लो, either run away or run along. And I think running along is the best way to come across any situation in life. So get the right attitude, run along with the situation, and even sky is not the limit. You will just cross everything. Thank you. Thank you very much. That aptitude and attitude दोनों की बात हुई यहाँ पे. So with that, we are actually crossing time. Otherwise, we could carry on this discussion for long. तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ. आप लोगों ने इतने शांति से सुना, और इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो ज़रूर सार्थक की वेबसाइट पे जा सकते हैं. यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, इनकी वेबसाइट्स पे या इनके ईमेल पे आप लिख सकते हैं. आपका मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, अप टू डेट, रिलायबल, इसलिए आप इस सब जो व्यवस्था बनी है उसका आप उपयोग करें. और ऑल द बेस्ट. एंड अब नेक्स्ट टाइम जब इस तरह का कोई पैनल होगा, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे और भी एंटरप्रेन्योर्स आके बैठें और कहें कि उनको कैसे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ. तभी मज़ा आएगा कि भाई आज हम जो 1 घंटे के लिए यहाँ बैठ के बात की है
उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ, और मैं उसको जानने के लिए बड़ा उत्सुक रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Atul sir. Thank you all the panelists for this wonderful session. I would request Raj Kapoor sir, our advisory board member, to please come on the dais. अभी हमारे साथ एक हमारे कैंडिडेट हैं बम कुमार, वो मुंगेर बिहार से आए हैं और उनको हम एक असिस्टिव डिवाइस ये पैनल में देना चाहते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट राज कपूर सर टू प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड somebody फ्रॉम सार्थक प्लीज़ escort बम कुमार टू स्टेज प्लीज़। He is traveling all the way from Munger, Bihar to attend this conference. We should appreciate him and we should clap for him. Thank you, Raj Kapoor sir. Sir, I would also request you to please extend our token of appreciation and heartfelt thanks to our panelists and Atul sir, our moderator of the session. I'd request you all to please move to the front for a group picture. Yes. So you have to. Request everyone for a group picture, please.